Hello students, welcome to the part third of the topics relation and function. I myself RNC. So in this session we will read about the definition of the function, how to find the domain and range of a function, and for finding the range and domain one, you should know that whenever ax square plus bx plus c is greater than or equal to 0, and if alpha and beta are the roots of this quadratic equation where alpha is greater than beta, then this is the line through which we know where this quadratic equation will be positive and where this quadratic equation will be negative. So it is positive from minus infinite to alpha and beta to infinite, and it is negative from alpha to beta. This you should know, and we will read this one in the topics of polynomial function, that is in the class of JEE main and advanced examinations. So we have already completed two parts of relation and function. And in last part, I have discussed about the mapping system and try my level best to give a concept of relation and function on the basis of mapping system. So you can see here what is the differentiation of relation and function. If you think a relationship between two quantities, you can think of this relationship in terms of input and output machine. Machine means what? It is constructed by a rule through which a processing system is going on. So that is the machine. In the machine we put something, and through the machine we get something. So that is your input and output. If there is only one output, this is a very important line. If there is only one output for every input, then you have a function. हर इनपुट के लिए अगर आपको एक ही आउटपुट मिलता हो, तो वो जो प्रोसेस आ रहा है, वो जो रूल है जो मशीन के द्वारा इन्वॉल्व हुआ है, उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे. Or if more than one outputs is there, then you has a relation. So इसको हम लोग अगर मैपिंग सिस्टम में पढ़ना चाहें तो मैपिंग सिस्टम में क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं मैपिंग सिस्टम में let f be a function, from set A to B, that is f is a function from set A to B, then f is a rule. Then what? F is a rule. F जो है एक rule होगा where each and every objects of set A. Each and every means what? For every input. This is each and every. For every input, that is written here. For each and every object of set A, there will be a unique relation made by the objects of set A with the objects of set B, with the objects of set B. So this is very important definition of the function. That is what?
if f is a function of from set A to B, it is denoted by this, then f is a rule. Number one, f is a rule where each and every object of set A का हर object, there will be a unique relation made by the object of set A with the object of set B. So तीन चीज यहाँ पर आ रहा है. पहला कारण क्या, f जो एक रूल होना चाहिए और सेट A का हर ऑब्जेक्ट का एक पेयर सेट B में होना चाहिए और जो रिलेशन होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए. यूनिक का मतलब है, जैसे हम लोग मैपिंग सिस्टम में पढ़े 1-1 मैपिंग. 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग में क्या था, दिस इज 1-1 मैपिंग. सो ये जो 1 आया, लास्ट में जो 1 आ रहा है, इसको हम लोग यूनिक कहेंगे. सिमिलरली अगर हम लोग मैपिंग को ऐसे बना ले, many one, this is many one mapping, so this is many one mapping. तो यहाँ पर भी 1 है, so this mapping is also a function. और एक important लाइन इसमें होना चाहिए कि सेट A में जो भी ऑब्जेक्ट है, सेट A का हर ऑब्जेक्ट का एक पेयर सेट B में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट छूट जाए जिसका पेयर यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा. सो नंबर 1, दिस इज ए फंक्शन. नंबर 2, दिस इज ए फंक्शन. और नंबर 3 में क्या होगा, जैसे अगर ऐसा कोई मैपिंग है, यहाँ पर एलिमेंट छूट जाए जिसका कोई पेयर यहाँ पर ना हो, सेट बी में अगर एलिमेंट है जिसका पेयर सेट बी में नहीं है, तो उस केस में भी इसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे. सो दिस 3, 1, 2 and 3, these 3 रिलेशंस आर फंक्शन. लेकिन अगर इसको छोड़ के अगर आप बनाओगे 1 मेनी या मेनी मैपिंग, सो उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे. कहने का मतलब है, अगर ये तुम्हारा 1 मेनी मैपिंग है, ये फंक्शन नहीं होगा. और अगर आपका पास ये मैपिंग है मैनी वन और 1 मेनी, ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा. तो 6 प्रकार का मैपिंग में केवल 3 प्रकार का मैपिंग जो है वो फंक्शन होता है. So now let us move to the another topics of the function, that is your domain and range. Domain and range. What is a domain and what is a range? प्यारे बच्चों, डोमेन रेंज तब तक चलता रहता है जब तक हम फंक्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं. यहाँ केवल हम ये देखना चाहेंगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं. सो व्हाट इज द डोमेन? तो इफ y इज इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, जैसे कहते हैं ना, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग. सो वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे f, टाइम को कहेंगे x, डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे y. सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ये यूलर साहब का देन है. यूलर साहब ने फंक्शन को इस तरह से नोट किया था. सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या है? फॉर एवरी x, if the function is defining, domain are the value of x for which the function is defined. Simple सी बात है. The domain of the function lies on x-axis and the range of the function lies on y-axis. So define का मतलब क्या है? In your syllabus, that is in the class 11 syllabus, 2 types are functions are given, that is fx is equal to px divided by qx and number 2 fx is equal to रूट अंडर px. ये 2 प्रकार के फंक्शन आपके सिलेबस में है. फिर भी 1-2 एग्जाम्पल हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे.
सो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? नंबर 1, यहां पर फंक्शन डिफाइंड होगा जब qx इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द फंक्शन is defined only when what? qx is not equal to 0। ये और ये क्या होगा? The function is defined only when px is always greater than equal to 0। This is the 2 clues in your syllabus। और जो है 3 प्रकार का और हम लोग डोमेन रेंज पढ़ते हैं जो आप जेई क्लास में इसको देखेंगे। फिलहाल आप ये 2 एग्जाम्पल को देख लीजिए। और डोमेन क्या है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड they are called as the domain of the function, and the corresponding value of x that belongs to y-axis, those values are called as the range। इस बात को नोट करेंगे। So जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन हम ले लेते हैं नंबर 1, fx इज इक्वल टू 2x x माइनस 3। सो लिखना इंपॉर्टेंट है। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सॉल्यूशन में द फंक्शन इज डिफाइंड। कैसे लिखोगे? द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन व्हाट? x minus 3 is not equal to 0। So what? x is not equal to 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है इसको नोट करके रखेंगे। ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर दिया होगा। अगर फंक्शन के बारे में कुछ इंडिकेशन नहीं देता है तो आप सिंपल समझ लेंगे कि जो फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। सो आई थिंक in this case there is only one value of 3 for which the function is not defining। so इस R में केवल 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा R से हटा देंगे किसको? 3 को। दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, fx is equal to x square plus 2 plus 5 x square plus 2x plus 5 divided by x square minus 5x plus 6। तो यहां पर भी वही भाषा लिखेंगे। द फंक्शन इज डिफाइंड, सेम प्रोसेस में जाओगे। द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन कौन 0 नहीं होना चाहिए? ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? x माइनस 2 x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा R से हटा देंगे किसको? 2 और 3 को। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, अगर fx दिया हो जाता है रूट 2x माइनस 1। सो इसको कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन सेम चलेंगे हम लोग। द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन 2x minus 1 is greater than equal to 0, that is x greater than equal to 1/2। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा। All the values of x which is greater than 1/2 up to infinite are the domain of this function. Similarly, let us see number 4, root under x minus 1 by x plus 2. What is the domain of this function? वही भाषा फिर से, the function is defined only when x minus 1 x plus 2 greater than equal to 0।
इसका मतलब क्या, x माइनस वन एक्स प्लस टू दैट इज एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस टू और x प्लस टू ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, दिस इज होल स्क्वायर। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन दिस टू। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस वन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट आर द रूट्स, इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स होगा x इज इक्वल टू माइनस टू और 1। सो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा एक लाइन खींच लेंगे आप, यहाँ पर माइनस टू लिखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया इधर जहां पर फंक्शन किस नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। सो डोमेन इसका हो जाएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन, इसको याद रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलिए हम एक आपको यह दिखलाना चाहते हैं कि डोमेन जो है हम ग्राफिकल वे से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक स्पेशल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं और ये जो प्रूफ है ग्राफिकल वे है। सपोज नंबर 5, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और जब इसको आप ऐसे तोड़िएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये एक सर्कल है जिसका जो रेडियस होगा दैट विल बी ए। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस वुड बी द रिलेशन। मैपिंग पहले चेक कर लो, मैपिंग में दिस इज मेनी, बताया था आपको पार्ट 2 में, दिस इज मेनी, आप जस्ट एक्स और वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन खींच लेंगे और चेक करेंगे ये ग्राफ को, ये लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इट इज इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स। द ग्राफ इज व्हाट, मेनी मेनी, मेनी मेनी मैपिंग। So whenever this many is coming here, that means what, this graph, this relation does not satisfy the condition of the function. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ये डिवाइड होगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जान ही रहे हैं कि y को हम एफ एक्स लिखते हैं, तो यहाँ 2 है, प्लस है और एक माइनस है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस दिया हुआ है। इसको जरूर देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन सेटर क्या करता है, यहाँ पर माइनस डाल देता है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो अगर प्लस लेंगे तो ये जो सर्कल था ये टूट गया इसमें, माइनस ए से ए तक में, और अगर आप माइनस लेंगे यहाँ पर तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, माइनस ए टू ए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ग्राफ से देख लीजिए, दिस इज द डोमेन, that is minus a to a. What is the range? 0 to a, this should be the range of this function. And if function is given like this, domain remains same. इसका डोमेन उतना ही है जितना इसमें है, और रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -8 से लेकर 0 तक। सो ये आपको डिफाइन करना है। तो चलिए इसको हम लोग, ये तो ग्राफिकल वे से हुआ, और इसको हम लोग मैथमेटिकल वे से कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, हाउ टू फाइंड। सो व्हाट इज द
suppose a function is given as fx is equal to root over 9 minus x square. So यहाँ पर प्लस है, इसको याद रखेंगे आप. This is the plus. So the function is defined. The function is defined if and only if 9 minus x square is greater than equal to 0. इसको आप पहले इसमें टर्न अप कर लीजिए. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज कीजिए. फैक्टराइज इस तरह से होगा. इसका रूट्स क्या होगा? द रूट्स आर कितना होगा? दिस इज -3 एंड 3. तो फिर हम लोग उसी लाइन में चलेंगे. दिस इज -3, दिस इज 3. क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है इसीलिए रिजल्ट यहाँ पर होगा. या प्लस माइनस प्लस होता है. सो दिस इज द आंसर. क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू भी है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा -3 से लेकर 3 तक. सिमिलरली अगर रेंज हमको निकालना है, हाउ टू फाइंड द रेंज? तो दिस इज y इज इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन ही निकाला जाता है, क्योंकि बिना डोमेन का रेंज नहीं आएगा. सो इसको पहले हम तोड़ देंगे. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर? दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर. सो व्हाट शुड बी द एक्स नाउ? So x is equal to root over 9 minus y square. तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे. लिखेंगे कैसे? x will be find out if and only if what 9 minus y square is greater than equal to 0. So that is y square minus 9 less than equal to 0. तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा? उसी तरह से द रूट्स इसका हो जाएगा -3 और 3. और फिर वही लाइन हम खींचेंगे जो लाइन खींचा गया था, -3 से 3. ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस. रिजल्ट यहाँ पर है. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन. रेंज आ रहा है -3 से 3. अगर हम इस बात को फॉलो करें तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रेंज तो y ही ना है, तो यहाँ पर प्लस है. तो -3 और 3 के बीच में एक 0 है. तो ये सब जो पार्ट है ये पॉजिटिव है और ये सब जो पार्ट है वो नेगेटिव है. इसका मतलब यहीं पर ध्यान देना होगा. अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो आप इसको लेंगे -3 से 0. अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो आप लेंगे 0 से 3. सो व्हाट विल बी द रेंज? सो रेंज इज द रूट. रेंज इसका कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 3 तक. इसको ध्यान रखिएगा. सो दिस इज द पार्ट 3rd. इन पार्ट 4 वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस दैट आर गिवन इन योर सिलेबस, दैट इज सिलेबस ऑफ क्लास 11. और इसका विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे जेईई मेन और एडवांस क्लासेस में. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का सफर है पार्ट 3 का. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए और इसको लाइक कीजिए. धन्यवाद.